وسیع اور بنجر خطوں میں شمالی کہیں بلندی پر ایک بہت ہی پراسرار جانور رہتا ہے جو اکثر حکمت کی علامت ہے، جو کہ تاریخی طور پر دنیاؤں کے درمیان ایک ذریعہ کے طور پر مانا جاتا ہے۔ خود اس حد تک لیمنگز اور برفانی اولے جڑے ہوئے ہیں، ان کا رشتہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ لیمنگ کے لیے اور اس کی موت کے ساتھ ہی اولے کے لیے یہ ضروری ہے، اس کا ساتھی انتظار کر رہا ہے کہ اس جوڑے کی پرورش کے لیے 4 اولادیں ہوں گی۔ باپ کو فوراً واپس جانا پڑتا ہے، ماں 3 ہفتے کے چوزوں کو دودھ پلانے کے لیے ٹھہرتی ہے، ان کا وزن تیزی سے بڑھنا پڑتا ہے کیونکہ برفیلے اولے کی سرزمین میں خزاں 3 ماہ میں شروع ہو جائے گی۔ سورج غروب نہیں ہوگا۔ کئی ہفتے اور یوں بالکل غیر معمولی طور پر یہ اولے کے لیے دن کی روشنی میں شکار کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں اس کی عادی ہوتی ہیں، کچھ بھی دیکھنا اور انتظار کرنا اس کی توجہ سے نہیں بچتا، یہ اس کی حکمت عملی ہے، لیکن آبی پرندوں کے لیے وہ اتنے موزوں نہیں ہے کہ وہ ان چوزوں کے لیے موزوں نہیں ہے جو اولے کا انتظار کر رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر لیمنگ میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، مادہ کے چوزوں کو روزانہ کم از کم 4 چوہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے لیمنگ سالوں میں جب نر ایک کے بعد ایک فراہم کر سکتا ہے تو اولے 11 تک اولاد پیدا کرنے کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن ابھی کچھ ایسے پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے خاندان اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ جب خوراک کی کمی ہوتی ہے اولے کم انڈے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر 4 سال بعد چھوٹے بچوں کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا ہے، کم از کم لیمنگ نمبروں میں دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ اب تک کیسا رہا ہے؟ لیکن اب لیمنگز کے لیے اس طرح کی تیزی کا وقت بہت لمبا ہے جس نے اس چکر میں خلل ڈالا ہے۔ اگر بہت کم خوراک ہے تو یہ آخری پیدا ہوا ہے اور اس لیے سب سے چھوٹا ہے جو اس کی ترقی میں قیمت ادا کرے گا۔ اس کے امکانات بڑے چوزوں کے خلاف اپنے حصے کے لیے مقابلہ کریں گے اور زیادہ دور دراز ہوں گے۔ نر شکار تلاش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ طویل وقت کے لیے باہر ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ماں اپنے بچوں کو برفانی ہواؤں سے بچانے کے لیے کچھ ہی دیر میں درجہ حرارت کے قریب پہنچ جائے گی۔ نقطہ انجماد ماں تحفظ کے لیے گھونسلے کے کھوکھلے کو گہرا کرتی ہے، جبکہ والد لیمنگز کے لیے بیکار تلاش کرتے ہیں۔ خاندان بھوکا مر رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے لیمنگز کو زمین نے نگل لیا ہو۔ ماں کے پاس پیش کرنے کے لیے مزید کچھ نہیں ہے۔ اپنے گھونسلے کے بارے میں التجائی کے پاس ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے مرتے ہوئے چوزے کی مدد کیسے کر سکتی ہے، جس سے بالغ افراد انتہائی کم درجہ حرارت سے نمٹ سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں چھوٹے کے لیے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے پاس کھونے کا وقت نہیں ہے، اسے کم از کم اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ دوسرے چوزے زندہ رہیں۔ اولو مردہ چوزے کو دوسرے چوزوں کو کھلائے گا۔ جب تک کہ نر کو مسائل کا سامنا رہتا ہے تب تک ہر طرح کی غذائیت ضروری ہے۔ خوش قسمتی کا شکریہ خاندان کے افراد غیر یقینی ہیں۔ ایک بات یقینی ہے، حالانکہ اس موسم گرما میں لیمنگ کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا ہے، چوزوں کو اگلے 3 ہفتوں کے اندر کم از کم 2 کلو وزن حاصل کرنے کا انتظام کرنا ہوگا، اگر نہیں تو وہ سردیوں میں زندہ نہیں رہیں گے۔ اگست کے وسط میں پہلے ہی غیر ملکی مشکل سے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ موسم خزاں ہے جو ان کا جنوبی برفانی اولو فرار ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاہم ہجرت کرنے والے پرندے نہیں ہوتے ہیں، وہ جہاں ہوتے ہیں وہیں رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اور ٹنڈرا توقع سے بہت پہلے برف سے ڈھک جاتا ہے۔ زمین کی تزئین کا درجہ حرارت کی گرفت میں ہے جو -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ڈوب جاتا ہے۔ یہ صرف وہی ہے جو خود کو ڈھال سکتا ہے، یہاں تک کہ پاؤں کی مخملی روحوں کو بھی پروں سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔
जैसा कि आर्कटिक लोमड़ी सफेद के साथ है, जैसे कैमोफ्लाज और गर्मजोशी से ढक जाता है। खाल के नीचे भी उल्लू और लोमड़ी की किस्मत एक जैसी है कि वो दोनों लेमिंग का शिकार करते हैं, और इन दोनों के लिए भी जरूरी है कि वो कुछ तलाश करें, क्योंकि दर्जा हरारत डूब जाता है। उल्लू के लिए अब एक मुश्किल फैसला है कि वो कोशिश करे और उसे बर्दाश्त करे यहाँ और लोमड़ी की तरह तलाश जारी रखे, या बर्फ बहुत गहरी और सख्त है और इससे चर्बी के ज़खायर कम होने का खतरा होगा। सफर करें। अगर हालात बहुत ज्यादा हों तो ये साइबेरिया के बर्फ के सहरा को पीछे छोड़ देता है और मगरिब की तरफ सफर करता है। 85 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करते हुए ये रूस के बड़े इलाकों का अहाता कर सकता है। 2 से 500 किलोमीटर दूर शुमाली स्कैंडिनेविया के फेलिस के अफजाइश के मैदान से यहाँ हुआ पहाड़ों की चोटियों को साफ करती है। खुली जमीन पर उल्लू के कुछ यमीन ढूंढने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उल्लू को आराम की दावत दी जाती है, उसके शिकार करने वाले अजनबी की मौजूदगी का ध्यान नहीं जाता था। हम कुत्ती बिरंजोद ही वापस आ जाते हैं। उनकी तवज्जो कई से पर्दा उठाने के मुश्किल अमल की तरफ मबजूल कराते हैं कि वो हाइपोथर्मी का शिकार क्यों नहीं होते। उनकी बड़ी खूनिकों से आईसीए की हुआ तवील नाक के रास्ते से गर्म होती है, और जब वो सांस बाहर निकालते हैं तो गर्मी बरकरार रहती है। खुर बर्फ के जूतों की तरह काम करते हैं और जानवर को बर्फ में बहुत गहराई से डूबने से रोकते हैं। लेकिन बर्फ पर चलने का असल माहिर अल्पाइन खरगोश है, जिसकी सफेद खाल और छोटे कान है। ये जैली कुत्ती माहौल के लिए बिल्कुल मौजूद है। ये खूबसूरत स्नूशो स्प्रिंटर बेहतरीन कैच होगा। सिर्फ उल्लू के लिए ये इतनी जल्दी नहीं थी कि इसके अलावा और क्या चीज है जो बर्फ की पेशकश में है। इन्होंने रात एक अच्छी तरह से मुयस्सर बर्फ के चैम्बर में थोड़ी सी आइडियों की तरह गुजारी है, लेकिन भूख ने इन्हें अपना अहाता छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। एक साथ बहुत सी आंखें उनकी उन्हें जिंदा रहने के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ उनका ध्यान से मुशाहिदा करता है, ताहम इसकी तवज्जो किसी का ध्यान नहीं जाती। एक पहाड़ जो अपने ब्राउन कजन से थोड़ा सा ज्यादा धब्बे से भरी हुई रुकावट के अंदर है, लेकिन इतना ही मजेदार है कि ये घास जमा कर रहा है और अपनी पेनेटरी को बर्फ के नीचे जखीरा करें, जहां वो सर्दी में अपना ज्यादातर वक्त अच्छी तरह से महफूज और मुश्किल से गुजारता है। बर्फानी उल्लू को अपने मौका का इस्तेमाल करना चाहिए। लेमिंग अपने बर्फ के जूतों पर चहलकदमी करता है। ये लेमिंग पर भरोसा करते हुए डंडा मारता है। छिलावरन और हैरत का अंसर, ताहम इसका अहाता उड़ा दिया गया है। लेमिंग बहुत तेज है। एक और कोशिश फिलहाल सवाल से बाहर है। शदीद बर्फबारी मरेत को रोकती है। ये एक बहुत ही आगाज है।
के लिए भी मुश्किल वक्त है। जो सर्दी के बहुत आदी हैं उनके पास सिर्फ रहने और भूखे रहने या तवानाई बख्शने का मौका होता है। गहरी बर्फ के जरिए अपनी मामूली खुराक के लिए नई चरागाहें तलाश करने के लिए लेनिन को कोई मसला नहीं होता। बर्फ इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये एक इत्तेहादी है का जखीरा करने के लिए जखीरा अंदोजी करना अपने जवानों को पूरे मौसम सुरमा में 6 बार तक बढ़ाता है। ये बर्फ के नीचे दबे हुए तमाम चीजों का इंतजाम करता है और शाज़ वाव नादिर ही बाहर निकलता है। अगर बर्फ का कोई नया इहाता हो तो ये इसके खिलाफ बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। उन्हें के लिए सर्दी और दुश्मन ये एक अलमिया है क्योंकि ये चूहों को तलाश करना बहुत मुश्किल बना देता है। ये सिर्फ उन जगहों पर है जहां हुआ इस बात को साफ करती है कि इसे एक मौका मिलता है। पहली कोशिश में चूहा अपनी भूबिया में छुपा हुआ है। फायदा और अपनी हिफाजत करना कोई अजनबी नहीं है। गहरी बर्फ का शिकार ऐसा लगता है कि उल्लू के लिए नहीं है। कुत्बी हिरन गैर मेहमान खित्ता छोड़ देता है। बर्फानी उल्लू भी आगे बढ़ने पर मजबूर होता है। बारहमासी हुआ बाज पूरे मौसम सुरमा में कुतुब के तवाफ का इहाता करेगा। ग़िज़ाइयत की तलाश अगर ये कामयाबी के साथ नहीं मिलती है तो सफ़र बहुत परखतर होगा। किया उसके ग़िज़ाई क़ल्लत का तवानाई के ज़खायर जुनूब तक पहुँचने के लिए काफ़ी देर तक रहेगा जहाँ ये दोबारा शिकार कर सकता है के दरमियान बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। लेकिन यहाँ भी बर्फ बहुत गहरी है। अजीम भूरी रंग का ये दिखाता है कि किस तरह एक अच्छा गहरा बर्फ का शिकारी बनना है। वो ऊपर से चूहों को ढूंढता है और पूरी ताकत के साथ आखिरी मेटरों को डूबने से पहले खामोशी से ग्लाइडिंग करता है। बर्फ में गहरा अगरचे सिर्फ 2 किलो वजन में ये अपने शिकार को 40 सेंटीमीटर तक बर्फ के नीचे पकड़ने में कामयाब होता है। मुकाबला पस मंजर में नजर आता है। चूहों की सप्लाई बहुत कम है लेकिन भूख बड़ी होती है। हर थोड़ा सा मौसम सुरमा में शुमार होता है। शिकारी पहले ही अपनी अच्छी मलकियत का इनाम निगल चुका है लेकिन बर्फीले उल्लू के इर्द गिर्द इस तरह के सख्त मुकाबले के साथ इसके मुकाबले को देखने में कुछ वक्त लगता है। इसे टाइगर्स के जंगलात को पीछे छोड़ने का कोई इम्कान नहीं होता है। ये दरख्तों के दरमियान खुली जगहों का शिकार नहीं कर सकता। आब वाओ हवा एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स है लेकिन इसकी मंजिल अभी एक तवील सफर है। मजीद 500 किलोमीटर के बाद भी ये नापसंदीदा मखरूती जंगल को अबूर नहीं कर पाया है। थक कर आराम के लिए रुक जाता है। जैसे जैसे शाम ढलती है टरूलों का जंगल अचानक जाग जाता है। बरगुंडज जुनूब की तरफ बढ़ रहे हैं और रात के लिए आराम करने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। जंगल की एक बहुत ही हकीकी रूह एक दाखिली रास्ता बनाती है। बर्फीले उल्लू को इस पर तवज्जो देना चाहिए। बहुत खतरनाक हो सकता है। एक वोल्वरीन डेव मार्टिन एक रात में 45 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकता है। सर्दी में खाने की इसकी अनथक तलाश में ये कुछ भी खा लेगा। उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं है। इसकी सूंघने की इंतहाई खूबसूरती से बच जाने वाली लाश इसकी तवज्जो हटाती है। अगरचे इसकी तवज्जो किसी का ध्यान नहीं जाती है। जब उसे पता चलता है तो लिंक्स मुतासिर नहीं होते हैं। कोई इसके इलाके पर शिकार कर रहा है। दी वोल्वरीन इसके बारे में बेहतर सोचता है और लिंक्स पर चढ़ता है। पहले ही भरा हवा है और वो रात को बसने के लिए एक पुरसुकून ब्रांच की तलाश में है जिसमें लिंक्स ने फैसला किया है कि वो तवील और सर्द घंटे आगे एक बहसी उल्लू के साथ सफर नहीं करेगा। उल्लू की ये एक ऐसी रात है जैसे कि अफसानों और परियों की
कहानियों के लिए बनाई गई हो, जहां शुमाली रोशनियां रात के आसमान में फ्लोरोसेंट भूतों की तरह रक्स करती हैं। शायद दूसरी तरफ के सफीरों के बारे में अफसाने इस तरह की रातों से जन्म लेते हैं। जम्मू वाओ कश्मीर रोलिंग की तख्लीक का सामान हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में मैसेंजर अल्लू को थोड़ा सा ज्यादा हकीकत में देखा जाए तो वो एक कुदरती मज़ाहिर का नतीजा है। शमसी हवाओं के इंतहाई चार्ज वाले ज़र्रात जमीन के माहौल से टकरा कर इस शानदार खेल में एटमों को मुतहर्रिक करते हैं। रोशनी और जैसे ही सूरज तुलू होता है, ये दिलचस्प तमाशा दिन की रोशनी में मुकम्मल तौर पर जज्ब हो जाता है। सियाह बदमाशों के लिए शुरू होने वाली बंदूक, जो साल ब साल उसी जगह पर अपनी इज्तिमाई सुहबत की रसूमात अदा करने के लिए आते हैं। हर मर्द अपनी जगह एक छोटा सा जाती इलाका है और मुकाबला को न सिर्फ सौती तौर पर बल्कि ड्रामाई तौर पर भी मुतासिर करने के लिए निकला है। आंखों के ऊपर सुर्ख रंग की झलकियां सालाना मौका पर सबसे पुरानी और आला तरीन रैंकिंग कोर्टिंग एरिना के मरकज पर काबिज होती है। शुक्रिया ग्रुप का एक कम उम्र मेंबर हिलम को अपना चैलेंज दे रहा है। एक जवाहरात को दो तलवारों की तरह कहा जाता है। परिंदे अपनी ताकतवर चोंचों के साथ एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। वो रेड वाटरस डायरेक्ट हट पर एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। छोटा पकड़ने में कामयाब हो गया। बड़ी उम्र के को पंखों के साथ कुछ ताकतवर जवाबी स्वैप्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जवान और बूढ़े को नज़म वाओ ज़ब्त में रखा जा सकता है। ये सिर्फ वही फातेह होगा जिसे मादा के साथ हम आहंगी करने की इजाजत है। लगता है कि गिराउस नहीं करेगा। नाश्ते के मेन्यू पर होना ये उन्हें को मजबूर करता है कि वो अपना सफर जुनूब की तरफ जारी रखे ताकि स्कैंडिनेवियन टाइगर को पीछे छोड़ दे। उसे आखिरकार मुनासिब शिकार के मैदान तक पहुंचना पड़ता है। पर्णपाती दरख्तों जैसे बर्च को जंगल के पेयट में मिलाया जाता है और दिन लंबे और गर्म होते जाते हैं। मजीद 10 दिन की परवाज के बाद ये आखिरकार स्कैंडिनेविया के जुनूबी साहिल पर बहिरा शुमाली तक पहुंच जाता है। ताहम इसके नीचे समंदरी परिंदों के साथ खुले पानी का एक बड़ा हिस्सा तलाश करने के बजाय इस साल एक बर्फीले सहरा के सिवा कुछ नहीं है। आर्कटिक का दर्जा हरारत यहाँ तक कि वाइकिंग्स की डेनमार्क की सरजमीन पर फैलने वाली एतदाल पसंद चढ़ाइयों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तस्वीर वही है, 5000 किलोमीटर अब इसके पीछे पड़ी है। ये सिर्फ उस वक्त है जब ये जर्मन शुमाली समंदर के जजीरों के इर्द गिर्द लकड़ी के समंदर तक पहुंचता है कि समंदरी रास्ते तैराकी के स्कूलों के दरमियान चीजें बेहतर नजर आती हैं। क्या बर्फ के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर फ्लाउंडर है। ये आखिरकार अपने मकसद तक पहुंच गया है। एक जवान बर्फानी अल्लू 2 हफ्ते पहले आया है। हालांकि कम तजुर्बाकार परिंदे बदीही तौर पर सफर के लिए रवाना हुए थे। उसे जर्मनी के शुमाल में एक मुकम्मल सीप टेबल मिल गया है। समंदरी साहिल के समंदरी परिंदे जहां तक आंख देख सकते हैं, मालारडस से लेकर शेल्डरिकस तक सभी एक जगह के लिए लड़ रहे हैं। जैसे ही शाम ढलती है, साहिल के पीछे अंदरूनी मीठे पानी की झीलों पर यहाँ वो मार्टिन या लोमड़ी जैसे रात के शिकारियों से रात भर बेहतरीन महफूज रहते हैं। अगली सुबह उनमें से ज्यादातर रात की गैर आरामदेह सर्दी और बर्फ के ठंडे पानी में अपने पैरों से बच गए। कि वो पानी वाले परिंदे कैसे मुंजमद न होने का इंतजाम करते हैं। हैरान किन तौर पर काफी है कि वो बर्फ पर बहुत कम गर्मी खो देते हैं। उनकी टांगों में हिट एक्सचेंज के कामिल निजाम से लैस है। गर्म खून नीचे की तरफ बहता है और ठंडा खून ऊपर की तरफ एक बहती हुई रुकावट पर गर्म खून का ठंडे खून के साथ तबादला करता है, जो जिस्म में तवानाई की बचत करते हुए वापस सफर करता है। उसूली तौर पर किसी के पांव ठंडे पड़ते हैं ऐसे
ज़हीन हरारत की बहाली के निज़ाम के बगैर छोटे परिंदे सबसे बढ़कर जल्दी से जम जाएंगे, लेकिन फितरत के इस शानदार अजूबे के बावजूद परिंदे सर्दी में मुसलसल दबाव में रहते हैं कि वो सरमई हीराम को आमतौर पर भूखा ना मरी मछली का शिकार करता है। ताहम जब पानी जम जाता है तो एक प्लान बी की जरूरत होती है। उसकी नजरें मछलियों के कंधों पर रहती हैं, जैसे अपने जैसे शिकारी शायद वो उनमें से कुछ झगड़ा कर सके। ऐसे मील बहुत दूर से साइबेरिया से आता है, जैसे बर्फीले अल्लू जो हमेशा की तरह देख रहा है। अल्लू का वजन शायद बहुत से परिंदों में से एक पर तवज्जो नहीं दे रहा होगा। एक आसान काम जो उसे और भी मुश्किल बनाता है वो यह है कि परिंदे एक दूसरे को खबरदार करते हैं। बर्फीले अल्लू को अभी भूखा रहना पड़ता है। एक खूरदरी को इसकी पकड़ के साथ कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मती मिल रही है, ताहम ये यहाँ सिर्फ कलील मुद्दती है।
हरकत तवज्जो से नहीं बचती जब दो में झगड़ा हो, तीसरा फायदा उठाता है लेकिन बदले में अभी तक हिम्मत नहीं हारी, घर को निगलने का मौका भी नहीं लेता। इतना हंगामा एक मछली पर कोई भी चीज परिंदों की जरूरत को वाज़ेह नहीं करती है, और ये सबसे ज्यादा मजबूत नहीं है जो यहाँ पर साबित कदम रहता है, लेकिन इससे भी ज्यादा वो सबसे ज्यादा चालाक के साथ होशियार गल मछली को फौरन निगल जाता है। ये मुकम्मल तौर पर बका की बुनियादी लड़ाई पर उतर आएगा। कीमत के दरमियान आखिरी मछली पर लड़ाई छिड़ गई है। परिंदों की कोशिशों में कोई फायदा माने नहीं है कि दूसरे को निगलने से रोकने के लिए जो भाप खत्म हो जाए वो सख्त सर्दी में मर जाएंगे, तकरीबन 50%। बदले भूख से मर जाएंगे। इनमें से सबसे ज्यादा वसाइल से बचने वाले कुछ जानवर ये फैसला करते हैं कि सर्दियों की सख्तियों के साथ अपने आप को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। दरख्त के खोखले में छपे हुए बाग के दरवाजे का चूहा तकलीफ दह सर्दी के मौसम से रुखसत लेता है। उसके जिस्म का दर्जा हरारत इंजमात से बिल्कुल ऊपर गिर गया है और इसका मेटाबॉलिज्म खुद को कम से कम टारक बीट्स तक कम कर चुका है, सिर्फ थोड़ा सा फी मिनट। जानवरों की रेंज मौसम सुरमा के महीनों में तस्वीर से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है और अपने चर्बी के ज़खायर से खुद को खाली कर लेती है, जबकि सोने के दरख्त के खोखले ज्यादातर खाने में घर वाले पसंद करते हैं। दूसरी तरफ छातराली बर्फ है जहाँ खुद को सूखे पत्तों के नीचे दफन करना पसंद करता है और घास के शिकारी जैसे बर्फीले उल्लू को इन्हें अपने ठिकाने में ढूंढने का कोई मौका नहीं मिलता है। बहुत से दूसरे जानवरों को इसे बैर और इसके सेब से भरी हुई झाड़ियों के साथ उठाना पड़ता है। जर्मनी के शुमाल में साहिली इलाके के दरख्त परिंदों के खेतों के कराई के लिए एक बहुत बड़ा फर्ज का काम करते हैं और आम ब्लैक बर्ड्स को बिल्कुल पसंद है। अमीर मुंजमद मेवे से इतनी बड़ी मिकदार में मीठा फरूकटूज होता है और तवानाई के अच्छे जराए हैं। शीर से आने वाले फल के फवाइद से लुत्फ अंदोज होते हैं। मोम के परों के सिर्फ मेहमान ही नहीं हैं जिन्होंने शुमाल की तरफ से मुश्किल सफर किया है। फौरी तौर पर ग़िज़ायत की जरूरत है, लेकिन तीतर बहुत ज्यादा बाखबर है। लेकिन आखिरकार उल्लू के लिए फिर से उम्मीद है कि निस्बतन खुले मैदानी इलाकों में शिकार के लिए इम्कानात बहुत बेहतर है। 100 साल पहले सेंट्रल यूरोप में बर्फानी उल्लू की तादाद बहुत ज्यादा थी। आज ये इंतहाई नायाब है कि कुछ लोग 2014 में तूफान के दौरान एक बहरी जहाज के तौर पर भी आते हैं जिसमें 5 अमरीकी उल्लू को यूरोप जाने वाले जहाज पर पनाह मिली थी। वो जहाज से हॉलैंड के ऊपर उड़ गए थे और दोबारा घर वापस आए थे। एक जदीद मौसम सुरमा की परियों की कहानी ऐसा आरामदेह सफर था। इस उल्लू ने इसमें इजाफा नहीं किया था कि अब इसे मुकाबला का सामना है। फॉक्स और शहरी सभी एक ही चीज का पीछा कर रहे हैं, जैसे माउस डिरिमीन। ऐसा लगता है जैसे इसके पास कोई मंसूबा हो सकता है। लोमड़ी अपना वक्त निकाल रही है, उसकी निगरानी कर रही है बर्फ के
نیچے ہلکی ہلکی آواز کے لیے کی کارکردگی اس کی میرٹ کے بغیر نہیں تھی۔ شہری کا مقصد ماؤس کو جھٹکا دینا اور اسے اس کی محفوظ پناہ گاہ سے ڈرانے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ کام کرتا ہے۔ فتح مختصر مدت کے لیے دوبارہ کوشش کریں۔ مریض مہمانوں کے لیے بہت خوش قسمت ہے۔ ارمنز اور لومڑی چوہوں کو اپنے شکار کے بنیادی ذریعہ کے طور پر شکار کرتے ہیں۔ وہ اپنی تعداد کے لیے اسی پر انحصار کرتے ہیں جیسا کہ کبھی بھی برفانی الو غیر ملکی پر نظر رکھتا ہے۔ صرف ان کے کلیپٹونیمی کی مزاحمت نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا برفانی الو منظر میں داخل ہوتا ہے۔ ان کے پنکھ اور مادہ بھوری رنگ کے دھبوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔
जैसे कि बर्फानी कहनी हंस अपने हजारों की तादाद में जर्मनी के शुमाल में आराम कर रहे हैं। उससे पहले कि फरवरी भर में साइबेरियन टाइगर का घर मुल्क की वापसी का सफर शुरू करें, सूरज की किरणें बढ़ती हैं और रवानगी का जज्बा झील के पार गूंजतन है। 17 से 11 किलो वजन हासिल करना अपने आप में एक काम है। नौजवान बर्फानी अले के लिए की रवानगी वापसी का इशारा है। ये बाल्टिक औसत के साथ रास्ता लेता है। ये दूसरे परिंदों की जड़ों की पैरवी कर रहा है। शिकार के बेहतरीन इम्कानात वो हैं जहां भी वो वक्फा लेने का इंतखाब करते हैं। आखिर में बर्फ के बगैर ठोर आता है और बर्फ सब कुछ ज्यादा आसान। शिकार की हिकमत अमली इस बार अचानक तब्दील हो जाती है जब वो चाहता है कि बतखों को उसे देखते हैं और ये बराह रास्त उनकी तरफ बढ़ता है, इन्हें गोता लगाने पर मजबूर करता है। ये सब्र के साथ ऊपर मंडलाता है। आपका शुक्रिया। सबसे पहले हवा के लिए आने वाले मर जाते हैं। आज ये तकरीबन 50,000 बारनिकल गैस के लिए तैयार किया गया है। अब उनके आर्कटिक अफजाइश के मैदानों के लिए रवाना हो गया है। बर्फानी अले भी आर्कटिक सर्कल से गुजरते हुए 4000 किलोमीटर से ज्यादा के इस आखिरी अजियतनाक मरहले को बर्दाश्त करने के लिए एक गैर मामूली तौर पर सख्त शुमाली सर्दी ने अल्लू को यूरोप की तरफ ले जाया है। ताहम ऐसे साल कमाम होंगे, कौन जानता है कि क्या वो दोबारा उन साहिलों तक अपना रास्ता तलाश कर पाएगा। तब्दीली का असर इसकी जिंदगी पर भी पड़ेगा। टनडरा के बहुत से खतों में साइक्लिकल जिंदा फैलने की वजह से पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा कमी आई है, जिसकी मुमकिना वजह आर्कटिक में बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है। इस वक्त ये तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड फी दुहाई है। सर्दियां मुख्तसर हो जाती हैं और मजीद कलीमनत नतीजाता लेमिंग साल के शुरू में बर्फ की अपनी गहरी और हिफाजती तह खो देते हैं। पिछली नस्लों के बड़े पैमाने पर फैलने वाली वबा को ड्रामाई तौर पर कम कर दिया गया है, जिसके बतदरीज 4 आर्कटिक पर वाज़ेह असरात मुरतब होंगे।